सो हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका वेलकम आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गर्ल्स क्लास में। सो टुडे वी विल डू सम क्वेश्चन अबाउट डिपेंड ऑन जनरल टर्म ऑफ एन एपी, दैट इज ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड वी विल डू some question on the nth term from the end of an AP, that is L minus n minus 1 into D. So myself Gajan Singh. So let's try. So we have some questions, some NCERT's question. So we write down. Question is this: question is which of the following AP, which of the following, which of the following AP or APs are APs if they form an AP, if they form an AP, find the common difference, find the common difference, find the common difference D, and write down two more terms, write down two more terms if these, if given progression is AP. So write down another two more terms. So first is we have a progression 2, 4, 8 and 16. So we will do, so this is the progression. We check this progression is AP or not. If they are form an AP, we have to find the common difference and write two more terms. So we will check. ठीक है, we will, हम चेक करते हैं उसको. तो कैसे चेक करते हैं? सॉल्व करके. If करते हैं, if these this progression, if this progression, ठीक है, is in AP, if this expression, this progression is an AP, so second term minus first term, if this progression is in AP, so second term minus first term should be equal to third term minus second term. So we will check. So second term is 4, first term is 2, third term is 8 and second term is 4. 4 minus 2, that is 2, and 8 minus 4 is 4. So this is not equal to, so here we can say common difference is not here in given progression
That's why hence 2, 4, 8, 16 are not in AP। अब हमने एपी में पढ़ा था कि एपी में क्या होता है, जो नेक्स्ट वन हम टर्म फाइंड करते हैं उसमें एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके दैट इज दो दैट डेफिनेट नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। वो क्या होता है, वो इक्वल रहता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है जो इक्वल रहना चाहिए, बट हियर शुड नॉट here common difference is not same, so this progression is not an AP। so first part is complete। अब second part check करते हैं। second part है तो ये वाला तो आपका AP में नहीं है, तो आगे इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, तो अगला हम चेक करते हैं। अगला पार्ट है, और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है आपके पास 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो इसको चेक करते हैं। सो अगेन वी विल फाइंड कॉमन डिफरेंस दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू 7/2 third fourth term minus third term to become a this progression is in AP। तो चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। if given progression is an AP, so common difference should be equal to same, common difference same होना चाहिए if this progression is in AP। चेक करते हैं common difference कैसे निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और चलिए पहले सेकंड टर्म माइनस करते हैं। 5/2 माइनस 2 ये हो गया 1/2, 2 2 या 4, एलसीएम लेके 2 एलसीएम 2 2 या 4, 5 - 4 दिस इज द 1/2। चेक करते हैं क्या कॉमन डिफरेंस इन होल प्रोग्रेशन में इक्वल है कि नहीं, तो और चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस और कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 3 माइनस लिख लेते थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या हमारा 3 है माइनस सेकंड टर्म दिस इज द 5/2, तो इसको कैलकुलेट करते हैं 2 एलसीएम 6 - 5 that is 1/2। so here we can see a common difference is same, any situation anyhow ये क्या है, common difference is same, so we can say given progression is in AP, simply we can say because common difference is same in whole progression। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया, ये AP में है कि नहीं है तो चेक कर लिए। if they form an AP, this is the AP, so find the common difference D। so common difference is we have already find out common difference 1/2। how to find common difference,
कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और वी कैन से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इस वे से हम क्या कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, इसके बाद कह रहा है राइट डाउन टू मोर टर्म्स, और अगले दो टर्म आपको निकालने हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं इजीली, इसको निकालने का तरीका रहेगा, कॉमन डिफरेंस आपको आगे निकालने हैं, तो उधर कर लेते हैं, इसको निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस आपका ध्यान रखना बस 1/2, कॉमन डिफरेंस इज 1/2। तो नेक्स्ट टर्म आपको निकालने हैं, तो क्या करना है, नेक्स्ट टर्म दैट इज 1 2 3 4, दैट इज फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। भाई हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपको नेक्स्ट वन टर्म निकालना है तो प्रीवियस में क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। तो उसको करते हैं, फोर्थ टर्म क्या हमारा 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला था 1/2, दैट इज 8/2, फिफ्थ टर्म इज 2/4, दिस इज द फिफ्थ टर्म। Similarly, we can find सिक्स टर्म। अब सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे, इजी, प्रीवियस वन में क्या करना आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करना। तो सिक्स से पहले कौन सा होगा, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड प्लस डेफिनेट नंबर, जो डेफिनेट नंबर ऐड करते हुए हम एपी में उसको ले जा रहे हैं। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को ऐड करना सिंपली, फिफ्थ टर्म we will get, we got 4 and common difference is 1/2, 4 2 is 8 plus 1 9/2, so this is the sixth term. So there are next two terms is, we have a next two term 4 and 9/2. So this question is completed here. So आगे एक नया क्वेश्चन लेते हैं। तो इस पे जो भी इसके जो बाकी दो पार्ट में आप सेट कर सकते हो। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया से। तो अगला एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स, write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given। तो A आपको गिवन है 10 एंड D इज 10। तो आपको क्या बनाना, फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है। If we have a first term is 10 and common difference is 10, so question is write first four terms of the AP के first four terms आपको write down करने हैं when the first term is A and common difference D is given। तो करते हैं इसको।
सॉल्व। तो एपी को हमने समझा था कि कोई भी प्रोग्रेशन आपका एपी में होगा कब, जब एक डेफिनेट नंबर को आप उसमें ऐड करते जाओगे। ठीक है, आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो उसमें उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाइए, तो आपको वी गॉट एपी। सो वी हैव a first term that is a given 10। ठीक है, नेक्स्ट टर्म that is second term। so second term we will get how, first term प्लस प्रीवियस में कौन सा जो डेफिनेट नंबर से ऐड करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस इज गिवन। सो कॉमन डिफरेंस को इसमें क्या कर देना, आपको ऐड कर देना प्रीवियस वन में। आपको अगर नेक्स्ट वन चाहिए, नेक्स्ट वन टर्म चाहिए, तो प्रीवियस वन में आपको कॉमन डिफरेंस को आप सिंपली ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट टर्म आपको पता ही है 10, कॉमन डिफरेंस गिवन है 10। तो सेकंड टर्म आपका क्या आ गया, दैट इज वी कॉल a2। तो सेकंड टर्म इज 20। फिर आपको सिमिलरली we can write first four terms। तो first term is we can write easily how, so first term is 10, next term कॉमन डिफरेंस ऐड करके क्या है 20। फिर आपको नेक्स्ट वन निकालना, तो इसमें आपको 10 ऐड करना सिंपली, तो क्या हो जाएगा 30। फिर नेक्स्ट वन निकालना है, तो आपको इसमें इस वाले में क्या करना, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, 30 + 10 40। तो दिस इज द 4 टर्म्स। तो इस तरह से आप इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं सिंपली। तो इजी था ये क्वेश्चन। तो आगे एक लेते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी 3-digit numbers, how many 3-digit numbers, how many 3-digit numbers are divisible by 7। तो ये आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कितने नंबर 3 डिजिट वाले जो 7 से डिविजिबल होंगे वो आपको फाइंड करना है। तो करते हैं सॉल्व में। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं, हमारा 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होता है, तो 100 से शुरू होता है। ठीक है, क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है। 101 नहीं है 7 से डिविजिबल। 102 नहीं। 103 चेक कर लो, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 × 7 ठीक है, नहीं है डिविजिबल, इसको चेक कर लो, ये भी नहीं होगा। 7 × 7 3 रिमेनिंग 3 से रिमाइंडर 31 हो गया। 7 4 से ये भी नहीं कटेगा ना 7 से, ये डिविजिबल है। ठीक है, दिस इज नॉट डिविजिबल, दिस इज नॉट डिविजिबल, दिस इज नॉट डिविजिबल। तो ये भी नहीं है 7 से। तो हम क्या देखते हैं, 107 को ट्राई करते हैं, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 × 7 कितना आ गया 3,
105, 7 से डिविजिबल, 7 वन जो 7 और 7 5 जो 35। तो 105 हमारा 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर है जो डिविजिबल है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 105 से। 105 आपका 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो आपका डिविजिबल है बाई 7। अच्छा, इसके बाद किससे डिविजिबल हुआ? तो क्योंकि हमें 7 से डिविजिबल करना, तो क्या करेंगे इसमें? 7 ऐड करके बढ़ा लेंगे, क्या हो जाएगा? 112। ठीक है, कर लो इसे। ठीक है, फिर इसके बाद फिर 7 ऐड कर लेंगे, 190। तो हमें तो हाउ मेनी डिजिट निकालने, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया, सेकंड पता चल गया, थर्ड। अब ऐसे आपको क्या करना है? लास्ट टर्म देखते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगा? तो 3 डिजिट नंबर कहाँ तक एटमोस्ट जाता है? 999 तक। ठीक है, तो उसमें चेक करते हैं 7 से डिविजिबल क्या होगा। ठीक है, तो 7 से डिविजिबल देखेंगे तो ये क्या कट रहा है, देखो 7 से, 7 बन जा 7। ठीक है, कितनी बार 2 बच गया, 29 हो गया, 7 फोड़ जाए 28, एक बच गया, 7 2 जा 14। तो ये भी नहीं है डिविजिबल। तो क्या करते हैं, और पीछे इसको अप्रोच करते हैं 998। तो ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको एक लास्ट टाइम आपको फाइंड कर लेंगे, तो उस हिसाब से फिर आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कितने डिजिट, कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो इसको चेक करते हैं 7 से डिविजिबल है। 7 में 7, 2 रिमाइंडर कितना हो गया 29, 7 फोड़ गया 28, ये भी नहीं है डिविजिबल। तो क्या करेंगे 997 करिए, चेक करिए 7 से, 7 वन जो 7, कितना हो गया 2, 7 फोड़ जा 28, 7 फोड़ जा 28, एक बच गया, और ये क्या हो गया 17। तो ये भी डिविजिबल नहीं है। तो आप 996 चेक करते हैं। ठीक है, तो करिए इसको 7 में 7, फिर 7 फोड़ जा 28, ये भी नहीं है। तो हमारा क्या होगा? तो हम चेक करते हैं 994 को, इसको चेक करते हैं क्या 7 से डिविजिबल है। तो 7 से 7 में 7, 7 फोड़ जा 28, और 7 2 जा 40। So 994 is the divisible by 7. So we find out last number 994. So we have a AP and common difference is 7. तो हम इसके निकाल सकते हैं कि इसमें कितने क्या हैं, नंबर हैं। तो चेक करते हैं। So we have a common, we have a first term is फर्स्ट टर्म क्या 105 है, तो राइट कर दिया। अच्छा, हमें क्या करना है, आपको L लास्ट टर्म पता है, वी हैव लास्ट टर्म दैट इज L आपको पता है 994 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या है इस गिवन एपी में, डिफरेंस कितना है 7 इज द कॉमन डिफरेंस इन गिवन एपी। तो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास है ए एन, ये देखो मैंने लिख रखा है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो वी हैव टू फाइंड, वी विल फाइंड एन, वी हैव टू फाइंड एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ए एन आपको, ए एन क्या है, एनएफ टर्म इज लास्ट टर्म। सो ए एन दे रखा आपको क्या है 994, ए इज द 105,
प्लस एन आपको फाइंड करना है -1, कॉमन डिफरेंस उतना 7। अब इसको इधर करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, 994 -105 एंड n -1 इंटू 7। इसको करते हैं 4 - 4 40 - 5 9, फिर 8 और फिर ये 80 इक्वल टू n -1। 7 का मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो n -1 इक्वल, इसको काटते हैं 7 × 7 एंड 7 4 जा 7 2 जा 44 एंड 7 7 जा 9, 7 7 जा 49 हो गया, तो 127 इज द, so n इक्वल टू 127 और प्लस 1, तो दैट इज n इक्वल टू 128। तो कितने टर्म्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे और वो 3 डिजिट नंबर्स होंगे, तो कितने होंगे n 128 टर्म्स होंगे इसमें जो 7 से डिविजिबल हैं। तो इस तरह से आपका जो आज का था, आज को जो भी क्वेश्चन थे इस पे बेस्ड, जो गिवन टॉपिक्स थे इस पे हमने क्वेश्चन कर लिए। तो बाकी के जो क्वेश्चन है आप उसको ट्राई कीजिए। सो अगर ये आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सो अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच।